Yeah. 1 second, let me share the screen now, then we will start. ये रिकॉर्डिंग्स आपकी सेव कहाँ पे होती हैं? ये मेरी डायरेक्टिव से होती है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, यू कैन एक्सेस डायरेक्टली, ओके, मेल पे। ठीक है, मेल पे मेरी ड्राइव पे रहेंगे, आप मेल पे ना आपको एक्सेस दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यू सिस्टम में ना, ठीक है ना, मिल जाएंगे आपको। ठीक है। So hope my screen is visible to you. हाँ जी, आ गई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, now our today topic is basically, first of all, we are going to discuss about that is called logical operator. These are the most important operator also, logical operators. Okay, logical operator में आपके पास and होता है, we will make this by double and operator, or होता है we will make this using 2 pi sign, and note, this is basically this. Okay, so these are the basically used for the testing, for testing the multiple expression, because we are having so many multiple expression. So when we need to check the both the conditions to prove, then we will use just like AND operator. Okay, so I'm just giving you one idea how AND is work. So this is A, B, result. Okay, so in the AND the case, if this is one, this is one, and this is one. अगर पहला एक्सप्रेशन ट्रू है, सेकंड ट्रू है तो ये ट्रू होगा, पहला अगर फॉल्स है, दूसरा ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ओके, सेम अगर आपका पहला एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा। ओके, अगर आपका पहला एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है तो भी ये फॉल्स होगा, मींस और उसी केस में चलता है, एंड उसी केस में चलता है व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ओके, ठीक है जी। Let me, yeah, next is your or. Okay, suppose A expression, B expression, and we need to calculate the result. Okay, so how it will, it is just like if one true, then true. Okay, and if first is 0, this is 1, then 1. Okay, हाँ जी, अगर first is 1, 1 0 second is 0, then 1, और जोर नहीं 0 0। this is basically. अगर मैं बात करूं आपके नोट की, तो नोट सिंपल चलता है, अगर 1 है तो उसको 0 कर देता है, अगर 0 है तो उसको 1 कर देता है, इसमें नेगेशन कर देता है। So this is basically your and or and not operator, logical operator. Okay, so ठीक है जी। operator, today we are completed about the operator. Okay, so saving this program, sorry, no, 7 G8 yeah, dividing G. Okay, done. Clear? ठीक है। We are going to discuss about now the third topic, that is called conditional statements. Okay, so what is basic conditional statement? Just to understand that, if I talked about conditional statement, so what is condition basically? When we are having more than one answer of any question, getting the point. Condition is what? When we are having more than one option or more than one answer, more than one answer of any question. So this is called condition. Okay, so basically condition is why we are using the condition. Condition is always used to control the flow of execution of the program. Okay? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, सीधा एंड किया, उसके बीच में कोई भी कंट्रोल नहीं है। ओके, उसकी एग्जीक्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं है, बट इन द कंडीशनल स्टेटमेंट वी कैन कंट्रोल द प्रॉब्लम, कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इफ समवन जस्ट आस्क यू व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, you need to ask tell only that conditional statement are used to control the flow of execution of the program. Okay, clear? Now, first of all, we are having if
Second, we are having if else. Third, we are having that is called else if ladder, then nested if, and switch. These are the topics we are going to discuss. Okay, if else ladder, nested if, and if. Okay, so we are going to discuss with if, then if else, then else if ladder. We are proceeding like that. Okay, so always remember that we need to follow the syntax is the same. You know the syntax, but I will tell you again. For the if, you need to give the if, then in the bracket you need to pass the condition. आप याद रखना है जब आपका असाइनमेंट होता है ना कोई भी, तो उसके अंदर यहाँ पे टेस्ट होता है. ओके, हर असाइनमेंट के अंदर ना यहाँ पे टेस्ट होगा. टेस्ट मींस यू नीड टू गिव द कंडीशन. जैसे कुछ कोड के क्वेश्चन सबमिट करने होता है टेस्ट में, तो वहाँ पे उसने टेस्ट लिखा होता है. टेस्ट मींस कंडीशन यू नीड टू मेक द. ओके, और इसमें नहीं होता, सी में ब्रैकेट्स होता है. देन यहाँ पे जो भी आपका कोड है XYZ कोड आपने बनाना है, देन आपका यहाँ पे ब्रैकेट होता है. दिस इज कोड इफ. If is only work if the condition is true. Okay, then I'm going to discuss else if, then we will move with the program. If, then condition, then bracket, then work one. हम इसमें से बोलते हैं work one. Okay, work two. Okay, this is. So how it is work? If the condition is true, it will perform the work one. If condition is false, it will perform the work. So basically, we are taking the result on every condition. If condition is false, if condition is true, we are checking. Okay. So now I'm making one program that will help you to understand. Okay. So just like wait a second, I need to save this program. क्योंकि अगर मैं बंद करूँगा तो हमें मिलेगा नहीं है. G8 हो गया, G9. Okay, then again I will open new. So now, so first of all, I'm just dash include ios stream.h, include onion.h. Okay, hash include stdio.h. Okay, void main. Okay, now number. Okay, then sorry, int number. Okay, clr scr. Now cout number. So cin, we know that cin is the command to enter the value the num. Okay, now अभी चेक करना, सिंपल इफ पहले चेक करेंगे. इफ नंबर इक्वल टू 100, cout. Okay, this is if basically. G10. Okay, compile. None. So see, if I enter 100, it will give this G. Okay, but if I will enter anything else, just like this number, it is different. Okay, समझ है? तो if is always work when the condition is true. Clear? Is I audible? हाँ जी, आप हो audible. मैं else की else is आज आपकी थोड़ी वॉइस इन एंड आउट हो रही है. मैं बताता हूँ, आज हमारे यहाँ ना इंडिया बंद है. ओके जी, तो सारे इंटरनेट पे घर पे बैठे हैं. बिल्कुल. एग्जैक्टली, क्योंकि जब वेले होते हैं तो लोग इंडिया में करते क्या, सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं ना. हाँ जी. तो इंडिया में नेट सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, आपको पता है. अच्छा, लेकिन उल कामों के लिए ठीक है जी. क्या करेंगे, थोड़ा बहुत देर तो करना पड़ेगा. तो सर है ना. हाँ, कोई बात नहीं. ये तो कह सकते हैं कि छोड़ दे. एक मैं इसके लिए ना लाइन बोलता होता हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना. हाँ जी. बिल्कुल ठीक है. cout
जस्ट लाइक यहाँ पे क्लिक स्पेलिंग मैंने आपके नाम के, ठीक है जी। ठीक है, डन। ओके, सो अब हमने इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया कि अगर मैं डालूं, इसके अलावा कुछ भी डालूंगा तो ये आपका नाम प्रिंट करेगा, नहीं तो मेरा नाम, put your else, okay, if else. ठीक है जी। Okay. So there are so many programs are there we can make for that, but I'm going to make one program only that will help you to understand the if and else. Okay, but rest I will give you the exercise for the same. But one program I'm going to make, that program is basically related to your interview and your assignment also. Okay. So what is the problem? What we are going to make? We need to enter a 5-digit number, okay, and we need to check whether number is palindrome or, okay, yeah. आपने इसको किया होगा प्रोग्राम को, लेकिन आपने इसको कंप्लीट किया होगा बेसिकली यूजिंग द फोर, बट वी डोंट हैव फोर, वी आर गोइंग टू मेक द ओनली स्विच स्टेटमेंट and we are going to make this program. Okay, so be with me, this is a very good program, G11. So same hash io stream dot, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब होता है गुरदमन सर कि अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए तो नंबर एक्चुअल के बराबर होना चाहिए। जैसे 11211, ओके, 4 टाइम 1, 5 टाइम 1, 5 टाइम 2, ओके, this number is equal to reverse itself. Okay. This is just the complex problem. Okay, so just be with me, try to understand this. Okay, so I'm taking void main, I'm taking a option number temp and rest. Now see out and the void this. Now I need a copy of number to check later on, so I am storing the copy of number in temp. Okay, later on I need to check now. Just now what we need to do now, we need to separate all the digits. Okay, so just hold on, good number, I'm just telling you what we are going to do. Okay, see what is basically we are going to do. Basically हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नंबर है, सपोज 1 2 3 4 5, these are the separated number, Gurudaman. This is basically the equal number. It is basically 12,345. Okay, so first of all we need to separate the digit. Okay, we need to separate the digits. For separating the digit, what we need to do, अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूं 10 के साथ, okay, तो इधर मुझे क्या देगा, ये 1 2 3 4, ओके, और मुझे रिमाइंडर में क्या देगा, ये 5। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, अगर मैं इसको 10 से नॉर्मल डिवीजन करूंगा तो इट विल गिव मी द 3 4 5 1 2 3 4, और एंड रिमाइंडर में मुझे क्या देगा, 10 देगा। ओके, सो अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं, ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू नंबर मोड 10, अगर मैं ऐसा लिखूं, मोड लगाऊं यहाँ पे, तो गुरुदमन सर ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे 5 रिटर्न करेगा। हाँ जी। ओके, लेकिन अभी नंबर में तो 1 2 3 4 पड़ा है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10,
तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, है ना। तो जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ये वाला, ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी। हाँ जी। तो ऐसे हम इसको कितनी बार करेंगे, 5 टाइम करेंगे। जब हम इसको 5 टाइम करेंगे तो हमारे पास इसके सारे के सारे डिजिट सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? ओके। ओके, सो मैं ये वाला लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक हमेशा मैथ से रखना, you need a strong mathematics if you want to make the logic just like me. Okay, now so a is equal to number mod 10, then number is equal to number divided by 10. Okay, then b is equal to number mod 10, then number is equal to number divided by 10, then c is equal to number mod 10. 5 टाइम करना पड़ेगा because we are going to make for the 5 digit number. Okay, when we study about the loop, then we can make up to any number. Equal to number mod 10 and number 5 time. So we separated all the digits. Okay, so now try to understand. In a e there is a one variable, d में आपका मतलब ऐसे चल रहा है, a में 5 है, b में 4 है, c में आपका 3 नंबर है, d में 2 है और 1 e में 1। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ reverse number. So I am taking here a variable in reverse equal to 0. Okay, because हमें रिवर्स करना है। सो रिवर्स करने के लिए हमारे पास क्या होता है गुरुदमन सर, बेसिकली हम एक फार्मूला लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पेंट पे आ जाइए आप, मेरा पेंट दिख रहा है ना आपको? ओके, दिख रहा है। तो हमारे पास ये है, तो हम क्या करते हैं, मेरे पास वो ये नंबर है, तो अगर मैं ऐसे करूं 1 into 1 प्लस 2 into 10, वो करते थे ना हम 10 100 1000 इकाई दही सैकड़ा करते थे। हाँ जी। ओके, प्लस 300 है ना, प्लस 4 into 1000, 5 into 10,000। ओके, अब अगर हम इनको कैलकुलेट करके वो करेंगे ना, सम करेंगे, तो ये उल्टा आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर उल्टा आ जाएगा, ये आएगा 5 4 3 2 1 वट एवर। ओके, समझ आया? ठीक है। तो उसको मैं इधर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बच्चा, देखिएगा। सो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल टू ई इंटू 1 प्लस d into 10 plus c 200 plus b 2000 plus a into हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, नंबर को सी आउट को एक बार देख ये प्रिंट कर रहा है, हम ऐसे बोल देते हैं द रिवर्स number is just like for our convenient we are printing this reverse. Okay, अगर कहीं पे दिक्कत आएगी तो हमें ये बता देगा कि मैं गलत हूँ। Okay, now what we need to check, now we need to check the palindrome. So how we can check if reverse equal to temp? Why we are comparing this with temp? Because नंबर तो खत्म हो चुका है डिवाइड करके, तो इसीलिए हमने क्या किया था, नंबर का एक डुप्लीकेट कॉपी हमने कहाँ स्टोर करके रखा था, टेम्प में स्टोर करके रखा था। ओके, नाउ सी आउट number is palindrome। नंबर प्रिंट करना है, जरूरत ही नहीं, हम सिंपल मैसेज ही करेंगे। देन एल्स your number is
palindrome. Okay, done. So Okay. this is the I'm doing this. Okay, be with me. By where? Here. Okay. आपने वो नहीं ना आपने ये दिए नहीं इंट ए इंट बी हाँ अरे वो पाइथन वाला हम पाइथन में नहीं देते ना, अच्छा अच्छा पाइथन में नहीं होता ये कुछ भी। इंट उंट का काम ही चक दिया उसने। मुझे याद भी था लेकिन जब मैंने बनाया फिर मेरे को लगा मैंने डिक्लेयर कर लिया। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। लो, नो एरर। हाँ जी रन करते हैं। अब मैं डालता हूँ 11211, ये पैलिंड्रोम है। रिवर्स नंबर इस गलत आ गया, 13403 नोट अ पैलिंड्रोम। तो ये गलत आ रहा है। अब हम चेक करेंगे, दिस इज बेसिकली टेस्टिंग करेंगे कि क्यों गलत आ रहा है। आपका तो गलत आया मेरा सही आ गया आपने नीचे ना एक डी जीरो माइनस कर दी होगी 1 10 100 1000 10,000 नहीं वो तो ठीक है आपका नहीं, एक मिनट देख लेते हैं, आपका तो सही आया होगा। हाँ एक मेरा मिनट मैं ठीक है देख लेता हूँ। 8 10 this 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 नहीं, ठीक आना चाहिए मेरा भी। एक मिनट देखता हूँ। E into 1 D into 10 C D into 1 plus D into 10 plus C into 100। यहाँ पे हाँ गड़बड़ हो गई। ये गलत हो गया ये प्लस आना है यहाँ पे बस बिल्कुल जी लॉजिकली गलत हो गया। अरे और फिर अरे सेव ही नहीं किया था मैंने प्रोग्राम, फिर इंट लिखने पड़ेंगे मुझे। आप ऊपर ही इंट दे दो ना इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई C का क्या फायदा होगा, C प्लस प्लस का क्या फायदा, फिर तो C का प्रोग्राम बन गया ना। नहीं पर सारे एकदम से डिक्लेयर हो गए ना बिल्कुल ठीक बोलो, लेकिन C प्लस प्लस हमें ये देता है ना, हमें C प्लस प्लस ये फैसिलिटी देता है कि वेरिएबल आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे चाहिए आपको। ठीक है जी अब इनमें से 11211 पैलिंड्रोम, ठीक है क्लियर, समझ आया। ठीक है जी चलिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ओके, आपने एक नंबर एंटर करना है, चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है कि अगर मैं उसके सारे डिजिट का क्यूब करूं और क्यूब करके क्यूब, अगर उसके क्यूब का मैं प्लस करूं, सारे डिजिट के क्यूब का प्लस करूं, एक्चुअल नंबर के बराबर हो, तो वो क्या होता है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, 153। ओके, तो ये होगा 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ओके, समझ है। ठीक लिसन, है जी ये बनाइए आप। तो बेसिकली आपको 3 डिजिट का बनाना है, नॉट मोर देन दैट। ओके, सिर्फ 3 डिजिट का बनाएंगे आप। जिस टाइम बन गया ठीक है जी, फिर आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी
गुड, मैं 1 मिनट आता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, आंटी आए हैं, जरा बता दो। कोई बात नहीं। गुरदमन सर, हो गया आपका क्वेश्चन? नहीं सर, हुआ नहीं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल करिए, देखें क्या कर रहे हैं आप, करिए। सेम लॉजिक रहेगा, एंड में जाके चेंज करना है। यहाँ पे हमने रिवर्स किया, वहां पे आपको क्यूब कैलकुलेट करना है, बाकी सेम है। माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है? नहीं, गलत कर रहे हैं आप। नहीं सुनो, ये 3 नंबर हाँ नहीं जी। है हमारे पास, एक ही नंबर, एक नंबर एंटर करना है हमने, ओनली 1 नंबर वी नीड। हमने सेम एक नंबर एंटर करना है जैसे हमने अभी किया, फिर उसके सारे डिजिट सेपरेट करने हैं, फिर उन डिजिट का क्यूब करना है जैसे मैंने किया। ओके, सो ठीक है जी। दोबारा से करो, सेम जैसे हमने किया वैसे ही करना है आपको, ठीक है? यप, ठीक है। अब एक वेरिएबल ले लीजिए, काइंड ऑफ क्यूब ले लीजिए, इंट क्यूब। देन क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये तो ये तो मेरा क्यूब आ गया। हाँ ठीक है, अब इसको चेक करो ना, इफ temp इक्वल टू क्यूब, बस ठीक है। सी आउट, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्रैकेट क्लोज, एल्स नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, रन करिए। ब्रैकेट एक ज्यादा लगा हुआ नीचे,
गाड़ी नंबर 153, यप, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, गुड, शाबाश, समझ आया। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टॉप करिए शेयरिंग। समझ आ रहा है ना आपको गुरदमन बच्चे? हाँ जी, ये ना मेरे को थोड़ा लॉजिक देखना पड़ेगा, जो आपने मॉड्यूलस करके नंबर तोड़ा ना, ये मेरे को थोड़ा सा एक बार दोबारा देखो ना, मेरे को सब समझ आ जाएगा इसके अंदर। मेरी बात समझिए ना, लॉजिक आपके अपने होंगे, हाँ जी। ठीक है, लॉजिक आपके अपने हैं, मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। लॉजिक बोला मैंने, लॉजिक लॉजिक पहले डिक्लेयर कर, लॉजिक हर बंदे का अपना होता है, और हाँ जी। लॉजिक हाँ जी। हमेशा बनता है मैथमेटिक्स से, ओके। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टास्क है, आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलजेब्रा लैडर, ओके। सो एल्स इफ लैडर, मुझे याद है एक बार मैं एलजेब्रा लैडर पढ़ा रहा था बीएसएफ के बेस कैंप में, हाँ तो जी। मैंने इफ पढ़ाया, मैंने इफ एल्स पढ़ाया, मैंने नेस्टेड इफ पढ़ाया है ना। तो बंदा एक मुझे कहता है कि सर आपने लैडर तो लगाया नहीं, लैडर क्यों नहीं लिखा कहीं भी? मैंने कहा सर लैडर तो टेक्निक है ना। कहता तो फिर एल्स भी टेक्निक होनी चाहिए। फिर मैंने उसको बोला भाई मैंने सी प्लस प्लस नहीं बनाया, मैंने सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, तो जिसने बनाया बाजार ने स्टोर स्टॉप को जाके पूछ। मुझे तब से ये याद है लाइन एक ना। बंदा कहता लैडर क्यों नहीं लिखा जी आपने, मैं कहा बात तो तेरी भी ठीक है भाई, ठीक है। सो एज दिस लेटर में हम क्या बनाएंगे, हम एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे, हम बनाएंगे लंबा प्रोग्राम बनाएंगे, ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे, ओके। ग्रेडिंग सिस्टम ऐसे बनाएंगे, हम M1 M2 M3 M4 M5 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे, फिर हम इनका सम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद हम परसेंटेज के ऊपर कंडीशन लगानी है, वो कहता है कि अगर परसेंटेज आपकी और आपका ग्रेड होगा, ओके। वो कहता है कि अगर परसेंटेज आपकी 90 टू 100 के बीच में होती है, ठीक है, तो आपका ग्रेड रहेगा ए। अगर 70 टू 90 के बीच में होती है तो ग्रेड होगा बी। अगर आपकी 50 टू 70 के बीच में होती है तो ग्रेड होगा सी। अगर आपका 35 टू 50 के बीच में होती है तो आप पास हैं, ओके। और अगर आपका लेस देन 35 होता है तो आप फेल हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो वो बोलता है सॉरी, इनवैलिड परसेंटेज मार्क्स। अगर 4000 डाल देगा तो 0 डाल देगा परसेंटेज मार्क्स, ओके। सो दिस इज वी आर गोइंग टू क्रिएट, ओके। बनाएं फिर सर। बनाते हैं जी। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहेगा, और इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज दूंगा, क्योंकि दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। सो सेम हम करते हैं, हैश इंक्लूड .h, hash include .h, hash include .h, okay. Now void make now okay. Now some variable int m1 comma m2 comma m3 comma m4 comma percentage, okay. This is so screen say out marks scene. So now I am entering with the multiple entry, multiple, okay. This is how we can enter the value in a single line, okay. ठीक है So जी। now
need to calculate the sum into m1 plus m2 plus m3 marks obtained 100 divided by 500. This is now we need to print C out. Is marks इसको मैं ना मेरे भी कुछ पीएम लिया हुआ है, सॉरी मुझे इसको पीएम यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो ओरिजिनस तो वी नीड टू गिव पीएम। डन। तो हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अभी हमें अपना ग्रेडिंग सिस्टम ना तो हम बोलेंगे इफ पीएम ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आपको एंडल लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा एंडल उसके बाद पीएम के बाद। वो जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा ना। ठीक है जी। ओह अगर कर रहा होता तब मेरे को चाहिए होता। ठीक है, ठीक है जी। वो लगा भी सकते हैं, नहीं भी, वो रिक्वायरमेंट्स पे होता है। ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू 100 पहला कंडीशन बन गया हमारा। तो इसके लिए हम करें सी आउट ए ग्रेड, ओके, एल्स इफ दिस इज बेसिकली लेटर। ओके, जब इफ एल्स को इफ फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड योर लेटर। पीएम ग्रेटर देन 70। यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब आप ऊपर वाला केस लोगे तो ऊपर वाला केस आपको नीचे इंक्लूड नहीं करना है, वो लेस देन में रहेगा। समझ आया? हाँ जी। क्योंकि अगर 90 आप दो जगह इक्वल टू में डाल देंगे तो वो 2 ग्रेड दे देगा आपको 90 पे, वो हमें नहीं करना। कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। सी आउट greater than equal to 50 and then PM less than 70. Zero. PM greater than equal to 35 and PM less than 50. So pass. Okay. Now as if PM less than 35, out field में जाके else प्रोसेस करेंगे हम। इसके अलावा डालेगा इनवैलिड परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, सो लेट मी ड्राइव दिस। ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ, कोई एरर होगा तो वी विल सोल्व। वन एरर भाई, स्टेटमेंट मिसिंग कहाँ पे लगाई हुई है? अच्छा वो नहीं आता, ब्रैकेट नहीं आता इसमें, राइट। ओके, अब डालते हैं हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स। मैंने डाला 100 100 100 100, तो 100% मार्क्स होंगे। तो 100 100 तो 100% आना चाहिए ये तो। अच्छा, इसका मतलब परसेंटेज गलत कैलकुलेट कर रहा है हमारा। परसेंटेज का फॉर्मूला गलत हो गया हमारा, वो ऑपरेटर प्रोसीडेंस का सिस्टम गलत हो गया। यस, अब देखते हैं अगेन।
100 100 100 100 100 किस गलत आ रही है हमारे से, बस ठीक है। परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं ना, परसेंटेज के लिए हमें क्या करना होता है, दिस इज बेसिकली 500 100 100 ओ बताता हूँ क्या हो रहा है, गुरदमन क्या हो रहा है पता, बेसिकली जो हमारी रेंज है ना, हाँ जी। वो इंटीजर की कम होती है, 32,767 तक होती है, वो वैल्यू बढ़ रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, वो भी एक ही बात है, ठीक है। ठीक है जी। फिर वो बेसिकली फिर वो अलग मैनर में जा रहा है, तो उसको वो वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए वो उसको नेगेटिव में फेंक रहा है वैल्यूज को, ठीक है, सही आया, आ गया। देखिए, ठीक है। सो दिस इज क्या हाउ वी आपने कैन मेक, 5 देने थे, 5 आपने 4 ही एंटर किए हैं। हाँ 4 नहीं 5 किए थे, एक ऊपर है ना, अच्छा एक ऊपर है, ठीक है। एक ऊपर, ये ऐसे चल रहा है ना, देखो, ठीक है जी, हो गया हो गया। फिर 4 रन और कर, 5। ठीक है, ठीक है जी। ए ग्रेड, तो यू कैन टेस्ट इट ऑन एनी वैल्यू, ओके, इफ यू वांट, आपने क्लियर। आपने एल्स के अंदर आखिरी एल्सिफ के बाद आप नीचे जाएंगे आप थोड़ा सा। हाँ हाँ, मेरे एल्स के बाद मैंने वही लिखा, इन एल्स लगाया ना एंड एल्स में, के अंदर ओके ठीक है एल्स। इन पीएम मार्क्स लगा दिया ना, मतलब अच्छा एल्स होता है जब कोई नहीं चलता तो बाय डिफॉल्ट एल्स जरूर चलता है, तो अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो एल्स को जरूर चलाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है जी। चलिए आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, वो आपने करना है, ठीक है। आपको, मैंने आपको पहले बोला था एक प्रॉब्लम आप मेरे साथ बनाएंगे, वन ठीक है जी। ओनली, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप जितनी मर्जी बनाते रहिए, ठीक ओके। है जी। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक टैक्सी ट्रैवल कंपनी है, इसका नाम कह लीजिए शाशा, कुछ भी नाम रख लो, टैक्सी ट्रैवल है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ना किलोमीटर ड्राइवन एंटर करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्सी का फेयर कैलकुलेट करना है, ओके। अगर टैक्सी 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर तक आप फायर करते हैं, ओके, तो आपका 1000 रुपीज फिक्स चार्जेस है, गुरदमन ध्यान रखना, प्लस 15 रुपीज, 15 रुपीज मैं इंडियन में लिख रहा हूँ, 15 रुपीज पर किलोमीटर आपको ऐड करना है, ठीक है। ठीक है जी। अगर टैक्सी आपकी 10 से लेके 100 किलोमीटर तक चलती है, तो आपकी टैक्सी का 14 रुपीज पर किलोमीटर रहेगा। अगर आपकी टैक्सी 100 टू 500 किलोमीटर तक चलती है, तो आपका 12 रुपीज किलोमीटर होगा, ओके। अगर ठीक है आपकी जी। टैक्सी 500 टू 1000 किलोमीटर तक चलती है, तो आपका 11 रुपीज पर किलोमीटर होगा, ठीक है जी। ठीक है। अगर इसके अलावा होता है, अगर आपकी टैक्सी ग्रेटर देन 1000 चलती है, मतलब 1000 से ज्यादा अगर चलती है, हाँ ठीक है, जी। तो आपको वो उसके पास 10 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है। 10 को अभी तो कंप्लीट करना है पर किलोमीटर, ओके। अब इसके ऊपर जो भी बिल बनेगा उसके ऊपर 30% आपका टोल टैक्स है, ठीक है जी। ठीक है जी। बनाइए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप हम बनाएंगे और आप मेरे सामने बनाएंगे, आप अपनी शेयर करेंगे स्क्रीन में, इसको सेव कर देता हूँ, 13, okay, I'm stopping, you share your screen and walk with me। हाँ जी। अच्छा आपकी स्क्रीन शेयर खत्म हो गई ना, तो मैंने वो आपका ना लिखा नहीं है, एक मैं जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ फोटो आपका। खींच लो, मैं फिर करता हूँ, स्क्रीन शेयर है ना, हाँ आप जी। फोटो खींच लो, ठीक है मैं फोन फोटो पे खींच। क्लिक टू फोटोग्राफ, टेक्नोलॉजी यूज करनी है, फोटो खींच लो इसकी। आप अपनी शेयर करेंगे मैं अपनी स्टॉप शेयरिंग करूँ पहले। नहीं नहीं, आप मेरी शेयर नहीं हो रही स्क्रीन, तो आपको पहले स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है इसमें जी मैंने। मल्टीपल नहीं शेयर होता, आप अच्छा स्टॉप ठीक, करिए, कर दिया जी मल्टीपल शेयर, स्टॉप। जब हो
जाएगा क्लिक ना, फिर मैं स्टॉप कर दूंगा शेयरिंग, ठीक है? ये लिख लीजिए आप। ओके जी, डन। हाँ जी, चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाएंगे ठीक है जी। बिना एरर के, ठीक है? अब आप यहाँ पे नहीं हो ना, फिजिकल क्लासेस में फिर ज्यादा मजा आता है। हाँ जी, फिजिकल में तो बिल्कुल मजा आता है। चलिए कोई नहीं, आप बनाइए आराम से। हाँ जी आंटी, लगा लो। इसमें फ़ॉन्ट बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा आप फ़ॉन्ट बड़ा कर दीजिए अपना। फाइल में जाके, एडिटर में जाके, फाइल में जाइए, फाइल, सेटिंग्स, सेटिंग्स, नीचे आइए फ़ॉन्ट में, ये ना एडिटर, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, एडिटर में आइए। एडिटर में आ गया जी। फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट 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 पे अभी फ़ॉन्ट कर दीजिए बड़ा। कितना 18 करूँ? कर दो या 20 कर दो। हाँ ठीक है, ओके कर दो। व्हाट्सएप मैंने बहुत यूज किया है ये जेट ब्रेन ना। ये मशीन, सी लाइन है जी ये। हाँ, नहीं ये जो आपका आईडी है ना, ये बहुत सारा यूज, हासिल बहुत अच्छी तरह यूज होता है। एक ही कंपनी के ना सारे, जेट ब्रेन के हैं सारे ये। अच्छा, हाँ, जेट ब्रेन्स का ही है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। सारे जेट ब्रेन के हैं। मैं हाँ जी, पाइथन हाँ इसी जी। पे करता हूँ सारा ना।
गुरदान बेटा प्रिसीजन एरर कर रहे हैं आप, आपने जो फेयर लिया हुआ है वो लिया हुआ है, फिर उसमें सर आपकी आवाज कट रही है। so you need to change the data type to your fair variable, you need to take it as float or double. आपकी ना आपकी आवाज कट रही है, एक सेकंड। ओके आपको व्हाट्सएप पे ना कॉल करूं मैं? नहीं, आपको व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा ना तो आपको ऑफिस से कॉल आएगी तो आपको पता नहीं लगेगा। हेलो। ऑडिबल आपकी अब आई है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वो बेसिकली गड़बड़ हो रही थी सारी, पता नहीं नेट ही बंद हो जाता है यार बीच में से, आज तो ब्रेक कर रहा है। सुनिए, हाँ जी। आपने बाकी ठीक करा है, गलती कर दी आपने, आप ना डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करें फेयर में, तो फेयर आपका जा तो फ्लोट में होगा या फिर डबल में होगा। ठीक है बाकी जी। ठीक, डबल बाकी होगा। ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, कंप्लीटेड फास्ट है ना। ठीक है जी। सीओट के बाद यप ठीक है, बिल्कुल ठीक करें, करिए कंप्लीटेड फास्ट।
ओके सर, इसमें एरर आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू के अंदर एरर बता रहा है ये। वेरिएबल किलोमीटर कहाँ है? किलोमीटर भी तो चाहिए ना साथ में। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये आप दोनों तरफ लगाना पड़ता है ना। वो चेक क्या कर रहा है, उसको चेक कंडीशन नहीं मिल रही है ना, बाकी ठीक है, अच्छा काम करते हैं आप, गुड, यू आर गोइंग ग्रेट, अच्छा पढ़ते हैं आप। छोटे मोटे एरर होते हैं, वो इट्स जेन्युइन। ठीक है जी। यप, 100 बिल्कुल ठीक है। 10 किलोमीटर डाला तो 1014 बिल आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। टैक्स कैलकुलेट किया? टैक्स तो कैलकुलेट किया नहीं। नहीं, टैक्स 80 मैंने टैक्स का ना वो लॉजिक गलत कर दिया, मैंने 30% ना किलोमीटर के हिसाब से डाल दिया मैंने। नहीं, टोटल बिल के बिल पे होता है ना टैक्स, किलोमीटर के हिसाब से टैक्स नहीं होता हाँ कभी भी। नहीं नहीं, ठीक है जी। तो फिर अभी इस लॉजिक को मैं कैसे ठीक करूं? इसके अंदर मेरे को एक नवा वेरिएबल देना पड़ेगा। आपको एक नया वेरिएबल लेके उसमें टैक्स कैलकुलेट करना है एवरी टाइम जब भी फेयर कैलकुलेट हो रहा है, हाँ जी, और वही उसको मैं आपको सोच रहा फेयर हूँ। में ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लेता हूँ एक डबल टैक्स। गुड। ठीक है, एक डबल टोटल दे देता हूँ शायद, पता नहीं। पता नहीं, आप अपना लॉजिक लगाओ, कोई बात नहीं। डबल पता नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता होता, हम इसलिए रैम बनाते हैं जो नहीं होती। ऑलवेज यहाँ पे अब आएगा टैक्स इज इक्वल टू टाइम्स फेयर, एंटर, टोटल इज इक्वल टू टैक्स, यहाँ पे फिर आएगा टोटल। ये सारा लॉजिक आगे कैरी हो जाएगा। हाँ, इसको कॉपी कर ले। ठीक है जी। अब इसको कॉपी कर ले, सभी जगह पे जहां जहां पे लगाना है इसको लगा के इसे चेंज करते जाओ सभी जगह पे, ठीक है। ठीक है, गुड। ओके जी। हो गया, बताइए। 1318.2 है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1000 का वो 35%, 30% वो टैक्स हो गया, बिल्कुल ठीक है यार। चलिए, वन मोर प्रॉब्लम दूं आपको एक, इसमें हाँ एरर जी, आए, अगली वाली में एरर नहीं आने चाहिए। ओके, ठीक है जी। गिविंग यू वन मोर प्रॉब्लम, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप स्टॉप करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की आप फोटो खींचेंगे और इसमें मेरे को बिना एरर के चाहिए ये, एक भी एरर नहीं चाहिए आपका, ठीक है। मींस ठीक फर्स्ट है रन जी। में चलना चाहिए ये, ठीक है। ठीक है जी। Let me share my screen, then I will design the program for you. नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, देखिए आप। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ना आपके पास एमआरपी आइटम का आपको डिस्काउंट निकालना है और आपको नेट बिल कैलकुलेट करना है। सो यू आर इन ए शोरूम, ओके। सो अगर आप 100 टू, एक मिनट मेरे को थोड़ा स्पेस देने दीजिए, 100 टू, अगर आप 100 टू 500 कुछ भी डॉलर जो आपकी मर्जी है, रुपीज ले लीजिए, डॉलर लीजिए, अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको वो 10% डिस्काउंट देता है और आपको नेट बिल कैलकुलेट करना है। अगर आप 500 टू 1000 कैलकुलेट करते हैं तो आपको वो 20% डिस्काउंट देता है। अगर आप 1000 टू $1500 खर्च करते हैं तो वो आपको 35% डिस्काउंट देता है। अगर आप ग्रेटर देन $1500 क्रिएट करते हैं तो आपको एक सिंपल मैसेज करता है, यू आर एलिजिबल फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप।
ओके, दिस इज योर टास्क। सो क्लिक द फोटो और आपको नेट बिल कैलकुलेट करना है और आपको डिस्काउंट भी प्रिंट करना है। यू नीड टू प्रिंट 3 थिंग्स, एमआरपी आल्सो, डिस्काउंट आल्सो एंड नेट बिल आल्सो। ओके, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, पिक्चर ले लीजिए इसका, 1 मिनट में सेव कर दूं। G13 या G14 कितने प्रोग्राम बना गए हम। यप, ले लिया पिक्चर आपने? ले लिया जी। ओके, चलिए फिर आप बनाए स्क्रीन, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। या हेलो जी, बोलिए। हाँ जी, डॉक्टर सिंह जी बात कर रहा हूँ जी, बोलिए सर। सर टाइम नहीं है जी, अभी रुकना पड़ेगा 1 महीना। सर बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, 2 दिन फ्री थे, 2 दिन मैंने एक बच्चे को दे दिया, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है जी। सर संडे हालत खराब हुई पड़ी है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एक जैसा है। नहीं सर, नहीं पॉसिबल नहीं होगा, 1 महीना तो वेट करना ही पड़ेगा, 1 महीना वेटिंग पे रहेंगे। सर ऐसा नहीं होता ना, सारे बच्चे एक जैसे हैं। अब आपके बच्चे के लिए मैं दूसरे बच्चे को तो नहीं बोल सकता ना कि नहीं आपने आपको मतलब होल्ड पे डालूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जी। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब एक भी स्लॉट किसी दिन का खाली, तो भी कोई दिन खाली है ही नहीं, एक जैसा चल रहा है सारा। सो सर फिर आप ऐसा करेंगे, मेरे को ना मंडे ट्यूसडे बैडनिस्टो को फोन करना जी मॉर्निंग में, तो फिर देखता हूँ अगर 1 आवर निकलता है तो, पर 1 आवर से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, ओनली 1 आवर। फीस है 2000 पर आवर। क्या सर, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है प्लस क्लास पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, 2000 पर आवर होता है सर। क्लास 1 आवर से ऊपर नहीं दे पाऊंगा, ये श्योर है। और वीकली मैक्स 2 क्लासेस, इससे ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलिए विल डू है ना, मेरे को कल वेडनेसडे को फोन करेगा मॉर्निंग। सर श्योर नहीं करता जी, देख सकता हूँ। सर जी श्योर नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है तो कैसे करूंगा। अब आपके बच्चे ने जो पढ़ना उसकी कोई क्लास नहीं चल रही, नहीं तो मर्ज करके पढ़ा दूंगा, तो 2 बच्चों को एक जगह पे, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। फीस का सर 20 आवर्स की फीस एडवांस लेते हैं आफ्टर 1 क्लास। हाँ जी, 20 आवर की फीस एडवांस लेते हैं। जब 20 आवर हो जाएंगे उसके बाद एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी तो यू नीड टू पे अगेन। कैश नहीं लेते सर, अकाउंट में लेते हैं सर। यू कैन गिव द कैश डोंट वरी, तो देने के लिए आपको आना पड़ेगा। यप यप, ठीक है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, विल डू द सेम। बट इस चीज की गारंटी है, बट आपको पता ही होगा मेरे बारे में, अगर आपने किसी ने मैं आपको मेरा रेफरेंस दिया होगा तो। इक्वालिटी में सर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सर इतनी पेमेंट लेते हैं तो सिर्फ क्वालिटी के लिए लेते हैं जी, ऐसे तो नहीं लेते। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके।
बन गया? हाँ जी, ऑलमोस्ट। यप, गुड गोइंग। अरे यार, अच्छा वो तो यूज ही नहीं किया। चलो ठीक है। क्या नहीं यूज किया? डिस्काउंट। हाँ तो डिस्काउंट ही तो कैलकुलेट करना है ना, तभी तो इफ लगाने हैं। लगाइए डिस्काउंट, बनाइए सभी जगह पे। ठीक है जी, बनाइए सभी। हो गया जी। ये तो 300 का तो 10% है। डिस्काउंट तो प्रिंट ही नहीं कर रहा है ये गुरुजी। चलिए नहीं, आपने 300 आपने बोला था रुपये। ना नेट बिल दिखाना है। तीनों चीजें दिखानी, मैंने बोला है वो बिल ऐसे आता है, योर एमआरपी इज, योर डिस्काउंट इज, योर नेट अच्छा बिल अच्छा, इज, काइंडली ठीक है। विजिट अगेन। ऐसे भी लिखा होता है ना शोरूम में। ये हाँ देख जी, बिल ठीक मेरे है। हाथ में ही है, ये देखो। ठीक है जी। बिल मेरे हाथ में ही पड़ा है, ठीक है। ठीक है जी। एक बात होता है ना गुरदमन, बच्चे प्रोग्रामिंग अपने लिए नहीं लिखते, प्रोग्रामिंग दूसरे बंदे के लिए लिखनी होती है जिसको कुछ नहीं आता। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द मैसेजेस। अच्छा, तो फिर इसका सिंटैक्स कैसे होगा? योर नेट बिल इज नेट आ गया। नहीं, आप कुछ मत करो ना। आप एक वेरिएबल ले लो, DIS, डिस्काउंट का लिया तो आपने वेरिएबल। दिया हुआ है मैंने, हाँ जी। हाँ, अब नीचे आओ। ऊपर इसके ऊपर एक लाइन बनाओ, इस वाली लाइन के ऊपर। इसके ऊपर। नहीं, इफ के अंदर, हाँ नेट जी। बिल के ऊपर, यहाँ पे एक लाइन बनाओ, इसके ऊपर एंटर करो। अब लिखो डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। 100 0.1 नहीं होता, 10 होता। 10% हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 100। हाँ तो बिल्कुल पॉइंट ठीक वन है। नहीं आया ना सर? पॉइंट वन नहीं आया। हाँ एक ही बात है, 0.1 ही ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए। अब नीचे से अब जो 0.1 है ना, उसकी जगह पे डिस लिख दीजिए। एमआरपी इज इक्वल टू एमआरपी प्लस डिस, नो, एमआरपी प्लस डिस माइनस डिस। नहीं, माइनस आएगा ना। नहीं, हाँ, एमआरपी माइनस डिस डायरेक्ट, बस दिस इज हाउ यू कैन फॉलो ऑल द रूल्स, ओके। बट सी आउट करना है ना मैंने, तो सी आउट करना है योर नेट बिल इज दिस। फिर इसके बाद मैं ये भी बोलने जाता हूँ योर डिस्काउंट वाज हाँ 10%। बिल्कुल ठीक है, डबल कोट लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल कोट लगाओ। हाँ लिखो डिस्काउंट इज। योर हाँ बिल्कुल। डिस्काउंट DISCOUNT इज डबल कोट बंद दिस। दिस, देन नेट, देन एमआरपी। इसके बाद एक सेकंड, सिंटैक्स है ये आपका। योर नेट इज योर, नेट अच्छा आप ये प्रिंट कर चुके हैं, नेट आप प्रिंट कर चुके हैं, योर एमआरपी प्रिंट MRP कर। इज MRP। अच्छा, अब ये अब बनाइए। हेलो। ऐसे सभी में चलेगा ये। ठीक है जी। नाउ यू आर गोइंग वेल, बट फिर गड़बड़ हुई। मैंने बोला था इस प्रोग्राम में एक भी एरर नहीं चाहिए। हाँ जी। नहीं, मैंने आपको पूरी तरह से मैंने सुना नहीं ध्यान से। मैंने सुनना है ना, सिर्फ आप किस चीज के पैसे दे रहे हो? मेरे को सुनने के पैसे दे रहे हो, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल जी। हाँ तो सुनना है ध्यान से। ओके, अब इसको बिल्ड करते हैं। यप। तो 300 रुपए पे 30 अरे यहाँ पे नहीं यार। पेशेंस रखो, जब आने लगती है ना प्रोग्रामिंग तो बंदा बड़ी फास्ट। ठीक है, 270, ठीक है। डिस्काउंट इज 30, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। यप, ऐसे करना होता है। चलें आगे। ठीक है जी। चलिए, so today I will send you the approximately 100 programs related to your conditional statement, okay? ठीक है जी। 100 means you need to practice on that। मर्जी है आपकी, मैं चेक नहीं करूंगा कभी भी,
बट ठीक है आपके जी। लिए करूंगा, अगर आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं करेंगे तो भी आपकी मर्जी, बट आप, मैं चाहूंगी कि आप करें। ठीक है, ठीक चलिए है जी। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे स्विच केस। ओके, ठीक है जी। एक टॉपिक मैंने आपको दिया है इसमें से, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और मैं आपसे कल उसके अगली क्लास में आपसे पूछूंगा। नेस्टेड इफ मैंने आपको दिया, ठीक है, ठीक है जी। वो आप पढ़ेंगे, उसके लिए एक दो क्वेश्चन प्रोग्राम बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को नेस्टेड इफ समझाएंगे। दिस इज योर टास्क। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्विच। सो स्विच इज बेसिकली एलजेब्रा लैडर होता है स्विच, लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है। स्विच जो होता है वो फास्ट चलता है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट को चेक नहीं करता। हाँ जी। उठा के स्विच। ओके, सो स्विच में क्या होता है, स्विच का सिंटैक्स कैसे होता है? सबसे पहले SWITCH स्विच लगता है, और उसके बाद जिस स्विच लगाना है वो वेरिएबल आता है, देन ब्रैकेट होता है, देन केस होता है, देन केस वैल्यू, केस वैल्यू, ठीक है, देन कोलन होता है, देन यहाँ पे वॉक होता है जो भी करवाना है, उसके बाद आपका ब्रेक होता है। ऐसे ही सोन चलता है अप टू n केसेस, जितने मर्जी केसेस बन सकते हैं। एंड में जाके इसका एक डिफॉल्ट केस होता है। ओके, और डिफॉल्ट केस में वॉक n होता है। ओके, और इसके बाद ब्रेक होता है। अपनी मर्जी है लगाना चाहे नहीं लगाना है। ओके, सो दिस इज बेसिकली okay. So I'm going ठीक to है। make a program that will help you to understand how we can use the switch statement. Okay, so G17. Okay, now simple. So what I'm going to make, I'm just explaining you what I'm going to make. I'm going to make a program. मैं क्या करूँगा? I need to enter the day number. Okay, so according to day number, it will print the day name. Okay, this is our task using switch. कैसे करेंगे? सिंपल देखिए, include io stream.h dash include union.h dash include stdio.h. Okay, void main. Okay, I'm taking a variable int day number and clr scr clears day number को सिंक करते हैं इसमें, और day number of the week. Okay, लगाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे आप, स्विच ए नंबर, यहाँ पे केस 1 Monday, then break. This is how. Okay, and same you need to make the case to see out system. Take this the step.
6. So all the SSP are created. Now we need to make the default. Cout Sanjeev, are you 7 days in the week? Then switch close, then get ch. No error. Running. See now. Thursday. समझ आया? ठीक है जी. इसको मैं एक और चला के बताता हूँ. जैसे मैं कुछ भी डालूं, बोलेगा only 7 days in a week. Okay. ठीक है जी. So this is how we can proceed with the switch case statement. Okay. Clear? ठीक है जी. ठीक है जी. समझ आया? So good morning. This is all about today class. Okay. मैं आपको इसलिए अभी ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ. बनाने को मैं आपको 2 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, 3 भी पढ़ा सकता हूँ. इनिशियल लेवल पे ना मुझे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए. ओके. ठीक है जी. ठीक है. तो आज मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट दूंगा, जो कल दिए थे, जो आज दिए थे, वो नेक्स्ट क्लास से पहले, जो आज भेजूंगा नेक्स्ट क्लास से पहले आप कंप्लीट करें. ठीक है. ठीक है जी. ठीक है. सो टू बी फ्रैंकली, मुझे बताओ समझ आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है अंडरस्टैंडिंग में? नहीं, हाँ जी, अभी तक तो समझ आ रहा है. सब कुछ आएगा समझ. बस एक बात याद रखना, जो आज करेंगे उस पे कल का डिपेंड है, जो कल करेंगे उस पे परसों का डिपेंड है. ठीक है जी. तो जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, देखिए दिस इज बेसिकली क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लास जो बाहर के बच्चों की करते हैं उनको साथ बैठ के प्रैक्टिस नहीं करवाते, 1-2 एप्लीकेशन की करवाते हैं, नहीं तो पूरी क्लास की तो प्रैक्टिस ऐसे निकल जाएगी. ठीक है. हाँ जी. लेकिन हाँ जो जी. बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको तो फिर ऐसा होता है, प्रैक्टिस टेस्ट दिए होते हैं तो रोज उनसे लेते हैं, बताओ जी आज आपने क्या किया. ठीक है. ठीक लेकिन है. बाहर के बच्चे बिजी भी होते हैं, वो काम भी करते हैं, तो उनको कंपल्शन भी नहीं कर सकते कि आप करो करो. ठीक है. हाँ जी. हाँ यहाँ जी. तो बच्चे बिजी होते हैं तो पेरेंट्स बोल देते हैं भाई संजीव सर जैसे मर्जी करो, तो फिर मैं टांग के रखता हूँ. ठीक है जी. तो आपने अपनी एक होनेस्टली ये पढ़ना है, समझना है अपना ना, होनेस्टी से करना है. ठीक है. दोबारा तो नहीं, एक बार अच्छे से करेंगे आप. ठीक है. आप ऐसा करिए, आप मेरे को ना 100 प्रोग्राम भेजने की बजाय ना आप मेरे को 1 या 2 भेजिए जो कि मैं कर भी पाऊँ, बिकॉज मैं ना बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ यहाँ पे. 3 भेज देता हूँ, 3 प्रोग्राम. ठीक है जी. आप 3 प्रोग्राम भेजिए. ठीक है जी. हाँ हाँ, क्योंकि आप बिजी हो, आई अंडरस्टैंड बिजी, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा. पढ़ाने को तो मैं 3 घंटे भी पढ़ा दूं आपको, क्योंकि हाँ अभी जी. मेरी क्लास एडजस्ट मैं वैसे कर सका हूँ. लेकिन ठीक है. पॉइंट ये, स्टार्टिंग में आपकी तरफ से फीडबैक ज्यादा चाहिए. हाँ जी. हाँ जी. ओके. बिल्कुल. यूजलेस नहीं अंडरस्टैंड. पढ़ना, मैंने आपको पहले बोला था, यूजलेस नहीं पढ़ाता मैं. ठीक ठीक है. है. मेरा गुरदमन सर मेरे को आवर्स पे करता है, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, मेरा ऐसे ही होता है. हाँ ठीक है. जी. हाँ जी. हाँ जी. मेरा एवरी आवर बिजी होता है, तो मुझे ये नहीं होता कि मेरे को ऐसा, मेरा ये होता है सिस्टम कि यार अकॉर्डिंग अच्छा चले. ठीक है. हाँ जी. बिल्कुल जी. तो चलिए ठीक है. टेक केयर ऑफ यू. दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास. ओके. ओके जी. आप मेरे को भी ईमेल करेंगे 3 प्रोग्राम? हाँ अभी नहीं करूंगा, मेरे को 10 मिनट लगेंगे. हाँ जी, कोई बात नहीं जी, जब भी है आप ना, करेंगे. 10-15 थैंक यू मिनट जी. में मैं आपको मेल कर दूंगा, आपको इजी. मेल पे मिलेगा. हाँ, इजी जी, इजी. ओके जी. थैंक यू सर. इजी वाई देंगे, इजी से इजी देंगे, बस आपने प्रैक्टिस करनी है. नहीं ठीक नहीं, है. इजी इजी मतलब कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आराम से करिए आप. हाँ मतलब मेरे को 10-15 मिनट लग जाएंगे, मैंने उठना है थोड़ा, मैंने कुछ खाना है, आज खाया नहीं मैंने. हाँ ठीक उसके है बाद सर. थैंक यू. थैंक यू सर. ठीक थैंक है. यू. ठीक है. बाय. और हमारी सर एक सेकंड, आप हमारी अगली क्लास कब लेंगे अब आप? अरे मैंने बता दी आपको कि मैं आपने वेडनेसडे मेरे फ्री, को हाँ वेडनेसडे बोला है. फ्राइडे फ्री हूँ. आपने बताना है किस दिन ले सकते हैं आप. ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ. आप मुझे मैसेज कर देना. ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू जी. ओके जी. ओके जी. बाय.